Hello everyone, this is Yukti Bilwal and thank you for joining this webinar where we're going to talk about why MBBS in Philippines can be a very good choice for you all, and what are the factors that can make this a very good choice for you all, because right now this year it's very important to save somehow this year of yours. आप लोग का टाइम बचाना भी हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट मकसद है. सो बेसिकली शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि जो भी आप लोग के डाउट्स हैं, right now I am here face to face with you all. So I want you all guys to please put up your questions in the question answer or the chat section. We have these two sections where we'll get to know about what are your queries about this country, about MBBS abroad also, if you have that kind of questions. So आप प्लीज उन क्वेश्चंस को जरूर पूछिए, बिकॉज दिस वेबिनार द होल सोल पर्पस इज दैट आई आंसर योर क्वेश्चंस, राइट. सो प्लीज आप अपना चैट का ऑप्शन या फिर अपना क्वेश्चन आंसर का सेक्शन में जाके कर सकते हैं.
And I would request all the panelists to keep note of good questions and we can then reply to them. Okay. All right. So I'll start with a presentation which I prepared just for Philippines so that you will know Philippines a bit more. And I can see some very good questions here, and I'll be answering all those questions once the presentation is over. If you have a pen and paper, then definitely you should keep a note of your questions. जो आपके question during the presentation अगर कोई आते हैं तो आप उन्हें ज़रूर check करें, ठीक है? और उनको note करें. Please note your questions, whatever the questions are, and we will be glad to answer all of them. Basically, as you know, मैं December 2019 में I was there in Philippines as per our aim to get more and more knowledge about different countries for you all guys. We deal with 12 countries. My aim is to visit all of the 12s and make sure that the proper information guidance you will get through us about which country is good, what are the aspects which make that country a good country to study MBBS. So yeah, so this presentation definitely we will begin and we will tell you about the factors which make it. If you have a pen and paper, that's very good. If you don't have, please take some notes of your questions and queries. And also I will allow few of the participants to talk or come even online while this webinar will happen. And so if your question is really nice, then definitely you will get a chance to come on a line on web with us. Okay. So very important website is search.wdoms.org, World Directory of Medical Schools. So in this list, there are 44 universities of Philippines that are listed. If you are following all my webinars, I always mention this website and I always tell that this is a very, very authentic website to get the information. यहाँ से आपको पता चल सकता है कि उस country कितने colleges actually में listed हैं WDOMS में और वो proper तरीके से आपको information मिलती है. So you can see here there are 44 and the list goes on. Ama School of Medicine is there, then Cebu Institute है, दवाओ है जिसके बारे में हम बहुत सारी चीज बताते हैं और भी सारे हैं जो कि आगे pages में आते हैं, but it's a screenshot so you can't see. You can go on search.wdoms and you can get this list by yourself as well. So Medical Council of India, we know for us Medical Council of India is very much important. WDOMS website and 40 of them are in Medical Council of India's website. So for us, हम लोग के तो ये वाली important है, ठीक है, जो Medical Council of India में है. So you need to make sure that it is in both of them. Just like this University of Perpetual Health वगैरह हम लोग बताते हैं. Even I went to this college. UV Gulas हम लोग बताते हैं आप लोगों को. These are some of our selections where we can provide you good services and the universities provide good services to the students. Now, safety concern, yeah, we all want to be safe during your studies in medical. So definitely these are the list of 5 cities, the top cities, top most safest cities में 5 cities Philippines की है, which is so nice, like you know, Valenzuela है, Davao है, Makati है, Cebu है, Bagura है, तो ये सारी जो है top 10 cities, safest cities in the world है. So I think crime rate अगर low हो, safety index में अच्छा हो, तो you get a kind of confidence that yes, you can study in this. And Makati जो है मनीला के पास में ही है, दवाओ जो है दवाओ DMS सब यहीं पर है, सेबू जो यूवी गुलास है वो सेबू सिटी में ही आता है, तो ये भी आपके लिए एक पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है. Currency of Philippines, this is the currency of Philippines. And 1 Philippines peso is 1.50 rupees. ठीक है, तो वैल्यू किसकी बढ़ी हुई? फिलीपींस पैसों की, क्योंकि उसको एक लेने के लिए आपको 1.5 रुपए जो है लगाने पड़ते हैं, which means that okay, the factors would be fine, like जो पैसे आप लोग खर्च कर रहे हो उतने ज्यादा नहीं खर्च करने पड़ रहे हैं आपको. Just having a look on the questions. So I keep writing your questions at the end of the presentation. I'll pick those questions and answer them. Okay.
Now, top university of Philippines for Indian students. Okay, for Indian students नंबर 1 पे जो आता है आपका, जो मैं ऑफ कोर्स हम लोग आपको गाइड भी करते हैं, नंबर 1 पे आता है दबाव, नंबर 2 पे आता है यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्थ, एंड नंबर 3 पे आता है यूवी गुलास कॉलेज ऑफ मेडिसिन। और भी सारी हैं, लाइजिम यूनिवर्सिटी है, एंड आपकी आवर लेडी ऑफ फातिमा भी है। बहुत स्टूडेंट्स आवर लेडी ऑफ फातिमा के लिए भी क्वेरी करते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आवर लेडी फातिमा हैज वेरी स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट। I don't want that you guys face any kind of issue with the management in clearing the exams and going ahead with your program. So you should always select the colleges which are very student oriented. So these universities, the management is very student oriented, and hence it helps the students to enhance their studies and have no issues while the program is happening. Also they are very budget friendly. जो आपका दबाव है, इसका ट्यूशन फीस स्ट्रक्चर 23 lakhs है। जो परपेचुअल है वो भी 23-24 के बीच में आता है ट्यूशन फी, बीएस और एमडी दोनों का मिला के। और जो यूपी गुलास है वो 17 to 18 आता है आपका ट्यूशन फी स्ट्रक्चर। तो आई थिंक दिस इज मोर in budget for you guys in comparison to other universities. That's why also we are suggesting this one. So weather in Philippines is very nice. It's round the year आपका जो temperature है वहाँ का वो गर्म hot रहता है, मतलब it's summer वाला रहता है। एंड द वेट सीजन जून एंड अक्टूबर, 2 ही सीजन होते हैं वहाँ पे। एंड क्लाइमेट चेंज जो है आपकी, जो ऑफकोर्स थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि ऐसा टेम्परेचर ज्यादा अच्छा रहता है पढ़ाई के लिए, जस्ट लाइक मुंबई काइंड ऑफ टेम्परेचर इज देयर। सो राउंड द ईयर आपको मतलब एक्सेसिबल रहती चीजें। ऐसी बहुत सी कंट्रीज है जहाँ पे बर्फ पड़ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन में इशू आती है, आने जाने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिलीपींस में ऐसा कुछ नहीं होता है। Visa for Philippines is easy. We provide visa for students and we help them in getting it. So आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. Now this is a very important question. I'm sure all of you have. What is NMAT examination? And is it difficult? Is it not difficult? क्या क्या आता है? So basically आपकी दो चीजें यहाँ चेक होती है। एक होती है मेंटल एबिलिटी चेक, जो पार्ट 1 का पार्ट होता है, ठीक है। इसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं, 3 आवर्स का एग्जाम होता है, ये मॉर्निंग में होता है। इसमें आपके वर्बल, इंडक्टिव रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एंड परसेप्चुअल एक्टिविटी स्किल्स, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं कि ये सब होता क्या है। बेसिकली इट्स टू अंडरस्टैंड योर साइकोलॉजिकल तरीका, आप कितना अच्छे सोच पा रहे हैं, आपकी आप समझ पा रहे हैं चीजों को। बहुत इजी होता है, पैटर्न्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना होता है, रीजन बनाना होता है। अब आप एक चीज का देखने का पर्सपेक्टिव सबका अलग होता है, सो यू हैव टू एक्सप्लेन इट। सो दीज थिंग्स आर द मेंटल एबिलिटी पार्ट। एंड द सेकेंड पार्ट इज एकेडमिक प्रोफिशिएंसी। ये भी 200 आइटम्स होते हैं, 2.5 घंटे का एग्जाम होता है, आफ्टरनून में होता है। इसमें आपके बेसिक साइंस यानी कि बायो, फिजिक्स, सोशल साइंस एंड केमिस्ट्री। Why this happens always? So yeah, so basic science में आपको बायो वगैरह था, जिससे आई डोंट थिंक किसी भी स्टूडेंट को कोई इशू होगा। हाँ, आई होप सो। So this is, you understood, first of all, is very important to understand the examination, not like just being scared of it or anything. Couple raises hand. Okay, is there any particular question? One second. Please put up your question on this, right? So we will get to know and we'll answer them. Now टॉपिक्स क्या होते हैं? आपकी केमिस्ट्री हो गई, केमिस्ट्री में आपके ये टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक्स, काइनेटिक्स, पीरियोडिक टेबल, थर्मोडायनामिक्स, ये सब आप लोग जानते होंगे, यू विल नो बेटर देन मी। फिजिक्स में आपके ये सारे टॉपिक्स होते हैं, बायोलॉजी में आपके ये टॉपिक्स होते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग में फिगर सीरीज होती है, जैसे 4 फिगर्स बना दिए, अब ABCD में से आपको बताना है कि इसका जो 5th जो है सीरीज में क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा। तो वो आपको पैटर्न समझना होता है। फिगर ग्रुपिंग, नंबर एंड लेटर सीरीज, जैसे आप 5 3 1 3 5 7 ऐसे करके बहुत सारी सीरीज होती है, जैसे कितने माइनस हो रहे हैं, आगे जैसे बढ़ रहे हैं। इट्स वेरी इजी। फंडामेंटल ऑपरेशन, मोस्टली अर्थमेटिक, वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, वर्क, पार, प्रोबेबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस, एरिया, सर्विस, थोड़ा सा आपके रीजनिंग को जानने के लिए होता है।
रीडिंग, कॉम्प्रीहेंशन एंड एनालॉजीज. सो बेसिकली रीड करवाते हैं एक पैराग्राफ आपको और उसके आपको समझना होता है, तो कॉम्प्रीहेंड करना होता है. दैट इज व्हाट एनमैट इज ऑल अबाउट. सो वी आर Sanjeev G, is that NMAT is more or less a formality exam for foreign students? Very good question. Please continue watching it and you will get the answer of it. Clearing NMAT is compulsory. You will get answer of it, Amit. Okay. And let me just check. Do students get NMAT coaching support? Okay. Ayushi, fee of Davao is 23 lakhs for 5 years. Like, yes, for the whole BS and MD course. Okay. Anyway, so let's go ahead and जो आपके questions अभी आप लोग put कर रहे हैं उसके तो खैर answers इस presentation में मिल ही जाएगा. So here it's about that part 1 is 200 item test with 4 subdivisions which are verbal, inductive, reasoning, quantitative and perceptual equity skills. 3 examinations. ठीक है. इसमें it measures the aptitude that were found to have significant correlation with the academic performance of a medical student. आपकी लॉजिकल रीजनिंग भी अच्छी होनी चाहिए टू बिकम अ मेडिकल स्टूडेंट, नॉट जस्ट योर एकेडमिक बैकग्राउंड. एंड पार्ट 2 measures subject proficiency in areas which are part of the academic background required to applicants to do the medical course. In total 5 hours and 30 minutes examination in a day. एक दिन में आपका 5 घंटे का एग्जाम होता है. Generally, its results are declared in about 15 working days and the candidate can get the admission as per college requirement. As per college requirement. The grading system is a percentile ranking from 1 to 99 plus and marks are given ranging 200 to 800. Okay? So ये जो admission का process वो आगे जाके यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो है percentile 1 से लेकर 99 तक आ सकती है. NMAT versus NEET. So बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था, मैम NMAT क्या NEET जैसा है? Hi Shreyasi, and if you have any questions do put it here. I remember having a conversation with you. अगर आपको आना हो, आपको ऑनलाइन बात करनी हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं. You can get in touch. So अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ NMAT और NEET में क्या फर्क होता है. बेसिकली जो NMAT एग्जामिनेशन है वो फिलिपिनोज के लिए होता है. और जो नीट का एग्जाम है वो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए होता है, राइट? अगर आप नीट का एग्जाम नहीं देके जाएंगे या बिना उसको क्वालिफाई करे जाएंगे तो आप इंडिया के स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन में नहीं बैठ पाएंगे. सिमिलरली फिलिपिनोज भी अगर इसको नहीं फॉलो करते एनमैट का तो वो भी फिलीपींस में काम नहीं कर पाते. बट अगर आप अब्रॉड में जा रहे हैं, फिलीपींस में जा रहे हैं आप पढ़ाई करने के लिए, तो आप पे भी रूल लागू हो रहा है, ठीक है. लेकिन बेसिकली आपको इसको पूरा नहीं फॉलो करना होता है एनमैट को, ठीक है. वो कैसे होता है वो मैं आगे बताऊंगी आपको. सो जो एनमैट है, एनमैट इज जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर यू गाइस. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल नीट में तो देखिए अगर आपका स्कोर 400 प्लस नहीं आता है या 500 प्लस नहीं आता है, सो सीट मिलना मुश्किल है आपको इंडिया में, राइट? यू कांट गेट अ सीट इन इंडिया. If you get in private colleges, the fees is very high. Yeah, the fees is 15 lakh rupees per annum, जो कि अगर 2 साल की फीस जो आप इंडिया के प्राइवेट कॉलेज में भर रहे हैं उतने में पूरा फिलीपींस का 5 साल का कोर्स, 5.5 साल का कोर्स पूरा हो रहा है. सो फीस का बहुत ऊपर नीचे है, ठीक है. नाउ बहुत से बच्चे कहते हैं मैम एनमैट ही देना है तो हम नीट दे देते हैं. और अगर नीट क्वालिफाई नहीं हुआ तो क्या एनमैट हमारा क्वालिफाई होगा? अगर हम नीट में 140 ही मार्क्स लेके आ रहे हैं तो हम एनमैट नहीं कर सकते शायद. क्या हमारा अगर इंडिया में नंबर नहीं आया तो एनमैट कैसे देंगे? सो बेसिकली ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 70% से लेकर
88 to 90 परसेंटाइल भी लेके आए हैं, और उनके मैंने वेबिनार के मैंने किया हुआ है, आप मेरे वीडियोस जाके देख सकते हैं। सो 99 परसेंटाइल भी बच्चों के बहुत आराम से आते हैं। बेसिकली आपको जरूरत ही नहीं है कि आप कोई भी चीज को अटेम्प्ट करें या फिर 99 परसेंटाइल लाने की आपको जरूरत नहीं है, बिकॉज मिनिमम क्राइटेरिया तो 40 परसेंटाइल का ही है जो आपको करना होता है। जस्ट लाइक टू गो अब्रॉड यू हैव टू हैव नीट का मिनिमम क्वालिफिकेशन। लास्ट ईयर नीट का मिनिमम था जनरल कैटेगरी के 134 एंड आई थिंक SC ST के लिए 110, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ मे बी मैं और पुराना बता रही हूँ, बट अप्रोक्सीमेटली ऐसा ही था। ये आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन, ऐसे वहां का मिनिमम क्वालिफिकेशन है 40 परसेंटाइल। अब मान लीजिए अगर आपके नीट में आते हैं 150, तो आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज बनेगा? मुश्किल से या आपको या तो प्राइवेट में किसी छोटे मोटे कॉलेज में आप जाएंगे, राइट? आपको कोई अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं इस मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ। बट एनमेट में ऐसा नहीं है। एनमेट में आप अभी, क्योंकि आप फॉरनर हैं, आपने ऑलरेडी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, जो भी कॉलेज आप चाहे DMSF लें या यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्थ लें या यूवी गुलास लें, तो आपका सीधा एडमिशन वही होगा। आपको एज अ फॉर्मेलिटी एग्जाम तो देना है एनमेट, ठीक है? अगर आपके 40 परसेंटाइल एंड अबव आ जाते हैं, गुड फॉर यू, you are good student, you have studied nicely, you have given the exam nicely, and you go ahead and start your MD course. If you don't get 40 percentile, so what the university does it, they contact the SHARE, जो कि वहाँ का मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया टाइप है, उनको बोलते हैं कि मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स, मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स ने एनमेट का एग्जाम दिया, DMSF के स्टूडेंट्स ने, जो उन्होंने BS कोर्स किया, 100 में से ऐसा मुश्किल ही 7 to 10 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो 40 परसेंटाइल का क्राइटेरिया मैच नहीं कर पाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 99 परसेंटाइल 80 परसेंटाइल भी लेके आएंगे। तो जो 7 to 10 स्टूडेंट्स होंगे जो नहीं कर पाएंगे, उनको वेवर मिल जाता है, क्योंकि उन्हें फिलीपींस में आगे ऐसा उनके लिए कोई भी रूल नहीं है कि उन्हें फिलीपींस में ही रहना है या फिलीपींस में काम करना है। तो शायद आराम से उन्हें वेवर देता है कि उनको हमारे यहाँ तो काम ही नहीं करना, तो उनके लिए ये लागू रूल नहीं होता है कि उन्हें एनमेट क्वालिफाई करना है। ओके, सो जितने भी स्टूडेंट्स, मान लीजिए 100 के 100 स्टूडेंट्स भी अगर 40 परसेंटाइल नहीं लेके आते हैं, तो सबको वेवर मिल सकता है, बिकॉज they just have to apply and say that we don't want to work in the Philippines, so we don't want to give this NMAT and we want a waiver. तो शायद waiver देता है, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स को दे रखा है। तो I hope none of you wants to really work in Philippines. You would like to come back in India mostly. और अगर आपका मन है कि नहीं यार मैं तो करना चाहूंगा शायद आगे, तो आप NMAT में तब जाके आपको 40 परसेंटाइल का मार्क क्लियर करने की जरूरत है, अदरवाइज नहीं है। Neither the MCI wants it, nobody wants the NMAT ka score. Okay, I hope this one is clear. If it's not clear to you, please write down the question on your paper and ask me while I am finishing the presentation. मैंने पहले आंसर करते पर मैं दोबारा आंसर करती हूँ। दो टाइप के स्टूडेंट्स होंगे, एक जो एनमेट में 40 परसेंटाइल ले आएंगे क्योंकि उन्हें लगेगा ये तो बहुत इजी एग्जाम है, इसमें करना ही क्या है, मेरी तो लॉजिकल रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है, मेरी तो बायोलॉजी बहुत स्ट्रांग है, और उनका 40 परसेंटाइल आ जाएगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ध्यान से नहीं पढ़ाई करेंगे, अब मान लो उनको मन नहीं किया, जैसे भी उनका 40 परसेंटाइल नहीं आया, तो उनको 100% वेवर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो अपना वेवर वहां पे हम अप्लाई करेंगे उन स्टूडेंट्स का और वो कंटिन्यू कर सकते हैं एमडी। सो इसलिए हम बोलते हैं कि ओनली अपीयरेंस इज रिक्वायर्ड, यू ईदर क्वालिफाई get 40% or not get 40%, you are any which way entering into MD, ठीक है। नॉर्मली जो बच्चों का 60% से अबव 12th में मार्क्स होते हैं उनका कोई ऐसा दिक्कत नहीं आती जहां तक हमें नॉलेज है। Do you need to take admission in Philippines? You need to take admission in Philippines. I am sure this question is for most of the students को है कि मैम बिना नीट के जा सकते हैं क्या फिलीपींस में? तो आपको ना 1.5 का BS कोर्स करना है।
For BS course, NEET is not required, and it's compulsory to do BS course. So you have 1.5 month, 1 year 5 months. आपके पास 1.5 साल है. आप नीट कभी भी दे सकते हैं. आप अभी वाला नीट दे सकते हैं जो अब हो रहा है सितंबर 13 को 2020, और आपके पास मौका है कि आप मई 2021 का भी नीट दे सकते हैं एज पर फिलीपींस का जो लॉ है. क्योंकि जब आप एमडी में एंटर करेंगे, जो कि आप करेंगे नवंबर में 2021 में, उससे पहले आपका नीट क्लियर होना चाहिए. ओके, या तो इसका क्लियर हो जाए या इसका क्लियर हो जाए. और अगर आपने पहले ही नीट दे रखा है, इफ यू हैव क्लियर नीट इन 2019 और 2018, then you don't need to do this, you don't need to do this. Okay, I hope this is clear to everyone. Hello Dr. Bhadu. Very good evening ma'am. हाँ, so जैसे कि हमने लास्ट टाइम स्टूडेंट्स से प्रॉमिस किया था कि हम जो है समझाएंगे उनको फिलीपींस का सिलेबस. तो टुडे एज यू हैव मेड दिस कंपैरिजन, सो मैं आपसे कहूंगी थोड़ा थोड़ा आप एक ब्रीफ तरीके से समझा दीजिए. जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं अभी, अप्रोक्सीमेटली 100 स्टूडेंट्स हैं अभी इस वक्त ऑनलाइन, तो मैं चाहती हूँ कि उन्हें नॉलेज मिले इसके बारे में कि कैसे फिलीपींस के सिलेबस में सब कुछ कवर हो रहा है. क्योंकि इट्स अ शॉर्टर ड्यूरेशन, 4 साल का है, तो स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं लगता है कि क्या वो कुछ मिस तो नहीं कर रहे. True.